Hi guys, good morning. So service marketing हमारा थोड़ा सा we've had a gap in between. I was just seeing the records between about 4 weeks that we haven't had the class. So we'll just take a couple of minutes to recap whatever we've covered and then we'll go ahead from that point. I'm seeing a few faces, so those of you guys, if you remember anything which I've missed or not covered, just let me know. So last topic that we had been doing was we were looking at how in a service industry we can provide customer satisfaction, because service, like we said, is very people oriented and there is lots of difference in it. For example, आज मैं class लेने आया हूँ, I'm giving a service, this is a service environment and I'm not in a good mood. There is something that's going on in my head, there's something that's happened in my personal life. Maybe I just hit my toe in the morning coming to the class, I hit it on a door while coming in. I am uncomfortable. For whatever reason, मैं uncomfortable हूँ. It will show in how I'm interacting with you, which will have an impact on customer satisfaction. So people part in service is very important, which is why I came up with this question while I was thinking, I want you guys to tell me, if we've all taken services, we've all experienced services, हम लोग यही, we experience it every day from our e-rickshaw to Airtel DTH to your mobile phone provider to an airline to railways, whatever. Everybody is giving us a service. So can you think of a situation where you went for service and वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई आपके सर्विस के साथ? I don't know if you guys are following, कल परसों की एक न्यूज़ घूम रही है नेट पे, I was just watching it. There was a SpiceJet flight जो दिल्ली एयरपोर्ट पे 7 hours डिले हो गई and the customers were unhappy about it. एंड उससे वो थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया क्योंकि एयरपोर्ट पे हर चीज़ थोड़ा सा न्यूज़ में आ जाती है. दैट्स द वे इट इज. हाँ जी, एयर इंडिया में पानी गिर रहा था. एक कल परसों में एक और स्पाइस जेट की दिल्ली पूना फ्लाइट पुणे में 12 घंटे लेट हो गई. इंडिगो की एक फ्लाइट हैदराबाद में कल ओवरनाइट फ्लाई नहीं करी. दीज आर सर्विस इनकाउंटर्स एंड द चैलेंज दैट बिकम्स इज टू फोल्ड. सर्विस में ना दो इशू होते हैं हमारे मेजर. वन इज डिलीवरिंग द राइट सर्विस. तो मैंने कस्टमर को कमिट किया, आई फ्लाई यू फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे और दिल्ली टू पुणे और वेर एवर यू वॉन्ट टू गो. दैट्स माई सर्विस प्रॉमिस. उसमें मैं आपको एक सीट होएगी एयरक्राफ्ट में, वेल क्लीन्ड होएगा, स्मेल नहीं होगी, फैसिलिटीज़ होंगी, जो भी मैंने आपको कमिट करा है आई एम डिलीवरिंग. लेकिन बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड माई कंट्रोल, माई सर्विस डिलीवरी गेट्स अफेक्टेड. अब आप लोगों को याद होगा जब आप लोग यहाँ पे आते थे समर्स में क्लास लेने, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती थी? एसी. और जिस दिन एसी चल रहा है उस दिन वी आर कंफर्टेबल, आर लर्निंग इज बेटर, वी आर रिलैक्स्ड. एंड जिस दिन एसी नहीं चल रहा उस दिन हम थोड़े से डिस्कम्फर्टेड होते हैं. एंड दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आर सर्विस एनकाउंटर, राइट? So उसमें आप, can you, one of you give me an example of when you went to get a service, कुछ भी लेने गए आप, आपने अपने एयरटेल वाले को फ़ोन किया कि भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा. उसने कहा सर मैं आऊँगा, और वो 10 दिन तक आया ही नहीं. ऐसा भी होता है कभी कमिट करा, वो पर्सन आया ही नहीं रिपेयर करने या सर्विस करने, वट एवर, दैट्स ऑल्सो सर्विस एनकाउंटर. कैन यू टेल मी सिचुएशन जहाँ पे ऐसा हुआ एंड फिर कंपनी ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की? बिकॉज आर की पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. और एक इसके बाद देर इज दिस नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी डूइंग विच इज कॉल्ड सर्विस रिकवरी. जब सर्विस खराब हो जाए, हाउ डू आई रिकवर इट? So I want you guys to think of this example because this will have a good impact on today's work, which is customer satisfaction and service delivery. Anybody wants to try? Yeah. I'm saying there has to be a good resolution to have a good service. There has That is the main thing, nahi, because so many companies are lacking in this thing, resolution. true. So basically, what I assume what you're trying to say, I'm trying to extrapolate and transfer it into the way that I want it to be done is there has to be a desire कि मुझे अच्छी सर्विस देनी है. That is the first thing, and she is very right. There are many instances where that may not be possible. Can you give me a more? So that's the background part. Can anybody give me a specific example? मैं इस सर्विस को कंज्यूम करने गया और मुझे ये प्रॉब्लम हुई. That is my question.
मैगी प्रोडक्ट है, अभी उसको प्रोडक्ट जहाँ पे मेजर पार्ट प्रोडक्ट है उसको अभी रुक जाओ उस एग्जाम्पल को, बिकॉज एवरी एग्जाम्पल हैज अ प्रोडक्ट एंड सर्विस कॉम्बिनेशन, इवन दिस लैपटॉप विल हैव अ प्रोडक्ट एंड सर्विस कॉम्बिनेशन. आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ प्योर सर्विस एनकाउंटर. जैसे ये क्लास है, दिस इज वॉट इज कॉल्ड अ प्योर सर्विस एनकाउंटर. इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है. मैंने बोला रिकॉर्ड हुआ खत्म, वहीं पे खत्म हो जाएगी ये क्लास. बट इन अ फिजिकल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट स्टिल रहेगा आपके पास. सो अभी वो वाले एग्जाम्पल्स, प्रोडक्ट प्लस सर्विस वाले एग्जाम्पल हम नेक्स्ट में लेंगे. पहले लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्योर सर्विस. वांट टू ट्राई? जैसे मेरी फैमिली में हम काफ़ी टाइम से बिग बास्केट डेली एप्लीकेशन यूज़ करते हैं. सो फॉर पास्ट 1 वीक द डिलीवरी इज नॉट मेकिंग इट हैपन. ओके, So सो we have tried many times the customer service and they just said that we will refund you. They always refund, that is not a problem. But they are not providing the service, that is the main thing. So we are now seeing many alternatives for the big basket delivery. पता नहीं बिग बास्केट ने मुझे तो कभी तंग नहीं किया, मेरा तो टाइम से आ जाता मेरे है. को भी नहीं करा क्योंकि काफ़ी साल से वो यूज़ कर रहे हैं, पिछले 1 वीक से ही हो गया है. ओके, सो नाउ कम्स द, सो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ प्योर सर्विस. ठीक है, मैं आपके वाले एग्जाम्पल अभी लूंगा आगे. सो व्हाट हैपेंस इज, डिड दे डू नथिंग? नो, they just refunded. But as a customer, he highlighted one problem. सिर्फ रिफंड इज नॉट इनफ, मुझे सर्विस भी तो चाहिए थी ना. नहीं तो मेरे पास ब्लिंकिट है, मेरे पास जोमेटो डिलीवरी है, ओ स्विगी वाला है, ओला भी देता है, ONDC पे इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरा नेबरहुड किराना स्टोर है, उसको फ़ोन कर दो वो घर दे जाता है सामान. वाई वुड आई बॉदर? पॉइंट इज कि दिस सर्विस डिलीवरी इज योर डिफरेंशिएशन. अगर मैं ढंग से दे रहा हूँ सर्विस तो ही कस्टमर मेरे पास रुकेगा ना, नहीं तो वो भाग जाएगा ना. सो लाइक ही रेड, हफ्ते भर से नहीं हो रहा कुछ, सो ही लुक फॉर ब्लिंकिट, मे बी सम अदर ऑल्टरनेटिव. पॉइंट इज कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा है, आप उसको रोकोगे कैसे? हाउ डू यू स्टॉप द कस्टमर फ्रॉम लीविंग यू? सो वन इज, देर आर सर्टन कंपनीज लाइक शी वेरी राइटली सेड, कुछ नहीं करते, जाना है जा, मेरे पास 1000 कस्टमर हो रहे हैं तो एक चला भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेनी ऑफ देम हैव दिस एटीट्यूड एंड दैट यूजुअली कम्स फ्रॉम अ बिग कंपनी. नंबर 1 साइज, नंबर 2 अगर आपकी ना मोनोपली है. अब जैसे आप लोग हैं, मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू दिल्ली में रहते हैं आप लोग सारे, कभी आपके बिजली वाले से आपकी लड़ाई हुई, टाटा पावर या BSES से? कभी उन्होंने कुछ करा, मीटर खराब हो गया, रॉन्ग बिलिंग करी, कभी कोई वायर जल गई, कुछ हुआ ऐसा? ओके, फॉर्चुनेटली फॉर यू आई हैव हैड दैट एनकाउंटर. फॉर्चुनेटली फॉर मी आई स्टे इन एन एरिया वेयर टाटा पावर डज द डिलीवरी, और उनका ना सर्विस क्वालिटी इज बेटर देन BSES. माय नानी यूज टू स्टे इन एन एरिया, अब तो वो वहाँ नहीं रहते, बट दे यूज टू स्टे इन अ BSES सर्विस्ड एरिया, और उनका यही परेशानी थी कि वो लोग सुनते नहीं है. फेयर इनफ, नहीं सुनते, बट शी हैड नो ऑप्शन but to accept that service. So for BSES, doing nothing could be acceptable क्योंकि उनका कस्टमर कहीं भाग के नहीं जा सकता. Are you getting my point? But big basket का कस्टमर भाग के जा सकता है because big basket is not a monopoly, right? So there again आप एक चीज और नोटिस करना, when you get your petrol filled, सबके पास कोई ना कोई व्हीकल है, स्कूटर, कार, whatever. You go to get petrol filled, आप क्या हर किसी पंप से पेट्रोल भरवा लेते हो? जो दिखा उसके पास चले गए, भाई भर दो मेरी गाड़ी में पेट्रोल. वाई डू गो टू अ स्पेसिफिक पंप? वाई डू गो टू अ स्पेसिफिक ब्रांड की भाई इंडियन ऑयल का ही पंप लेना है, जहाँ दिख जाए इंडियन ऑयल से ही भरवाना है, या HP से ही भरवाना है, या भारत पेट्रोलियम से ही भरवाना है? वाई? है तो दोनों, तीनों सेम, तीनों गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तीनों का एक ही रिफाइनरी से आ रहा है, प्राइस भी सेम है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A, B and C? हाउ डू यू डिसाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन? पेट्रोल ही तो भरना है. गुड पॉइंट, ट्रस्ट. अब यहां पे आता है ना फिजिकल प्लस सर्विस. फिजिकल प्रोडक्ट इज द पेट्रोल, बट द फैक्ट इज ट्रस्ट. व्हाट एल्स? हाउ एल्स विल यू जज? हाँ जी, लॉयल्टी. ओके, मेरे घर के पास में है, वो तो इनर्शिया हो गया ना, वो लॉयल्टी हुई कि इनर्शिया हुआ? चूज नहीं. द पॉइंट इज, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मेरे घर के पास में पंप है, मैं उसी से भरवाता हूँ. अब वो लॉयल्टी है कि इनर्शिया है? डिबेटेबल. सो कीप दैट क्लैरिटी.
सो व्हेन यू से कि पेपर लॉयल्टी है, लॉयल्टी हैज टू बी कि आप उसके लिए हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जा रहे हो वहां पे, तभी लॉयल्टी है, नहीं तो वो इनर्शिया है। I get it? So, I'll give you one example. यहाँ पे ना GT Canal Road है इधर, those of you who stay in this area, वहाँ पे if you go from North Campus to Azadpur, there's a petrol pump that comes, it's called Singh Service Station. जो लोग इस एरिया में रहते हैं आपको पता होगा वो एक पेट्रोल पंप। नाउ आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि अगर मुझे पेट्रोल भरवाना है ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर, आई हैव 5 पेट्रोल पंप्स फिक्स्ड। मैं इनके अलावा अपनी गाड़ी में किसी से पेट्रोल नहीं भरवाऊंगा, बिकॉज ओवर द years I have developed a trust with these particular locations and I now make it a point कि अगर मुझे पेट्रोल भरवाना है, मेरे घर के विदिन 500 meters ऑफ माई हाउस देयर इज एन इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। मैंने आज तक एक बार उससे भरवाया था, मैंने उसके बाद दोबारा नहीं भरवाया उससे। मैं जाता हूँ, मैं स्पेशली जाता हूँ भरवाने, मैं शालीमार बाग से सिंह पेट्रोल भरवाने आता हूँ स्पेशली। दिस 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर है आना जाना मेरे घर से यहाँ तक। आई कम टू गेट पेट्रोल फिल्ड बिकॉज देर इज दैट लॉयल्टी। दिस इज लॉयल्टी, right? Are you getting me? I'm trying to clarify the concept for you. You are right, loyalty is a good point. So trust कहाँ से आता है? क्वालिटी से आता है। ट्रस्ट है तो लॉयल्टी है। और हाउ else will you judge? पेट्रोल ही तो भरवाना है, क्यों जाते हो आप पर्टिकुलर पंप के पास? पास्ट एक्सपीरियंस। सो व्हाट हैव दे डन? अगर कुछ गड़बड़ हो, सो आई रिमेंबर वंस इट हैपेंड, क्या हुआ था, एक बार ही कुछ गलत पड़ा था या कुछ हुआ था, समथिंग हैपेंड टू माई कार और मेरे पेट्रोल टैंक में से पेट्रोल लीक करने लग गया। याद नहीं क्या खराबी थी उसमें। सो द सेंटर गाइज दे स्टॉप्ड फिलिंग द पेट्रोल। उन्होंने थोड़ा सा एक कैन में निकाल के भी मुझे दे दिया। दे ट्राई टू हेल्प मी आउट। आई हैव दैट ट्रस्ट। बट द सेकेंड प्रॉब्लम दैट कम्स इज, ट्रस्ट इज वेरी गुड बट ट्रस्ट डेवलप्स नॉट जस्ट ऑन गुड थिंग्स। यार सब अच्छा हो रहा है तो ट्रस्ट है। सेकेंड वे ऑफ लुकिंग एट सर्विस क्वालिटी इज, उन्होंने क्या करा जब सर्विस खराब हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, आपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए, उसने साफ करने की जगह उस पर कोई दाग लगा दिया। ये तो होता है, सबके साथ हुआ होगा। ड्राई क्लीन में कपड़े दिए, वापस से उन पर दाग लगा हुआ है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? So what is difference between reliability, loyalty and trust? सॉरी, एक बार दोबारा बताएंगे। लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड And reliability. रिलायबिलिटी। Yes. आई थिंक दे आर स्टेप्स टू ईच अदर। अगर आपकी रिलायबिलिटी है तभी आपके पास ट्रस्ट है। इफ आई डिलीवर अ गुड सर्विस एंड आई डू इट एवरी टाइम, दैट इज गिविंग अस रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के बाद आएगा ट्रस्ट कि ये पर्सन मेरा काम ठीक करेगा, और ट्रस्ट के बाद आएगी लॉयल्टी। सो फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन एग्जाम्पल। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव दैट। अगर नहीं है तो यू विल डेवलप इट ओवर द ईयर्स। मे बी सम ऑफ यू हु हैड दैट एक्सपीरियंस विल हैव इट। मेरा ना एक, वी कॉल ना, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड अ फैमिली डॉक्टर। सबके पास होता है एक फैमिली डॉक्टर। मेरे पास एक फैमिली मैकेनिक है। जैसे हम कहते हैं ना खानदानी डॉक्टर, मेरा एक खानदानी मैकेनिक है। मीनिंग मेरी जो मर्जी कार हो मेरे पास या मेरे फैमिली मेंबर्स के पास, मैं उसके अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देता अपनी गाड़ी को। And you can guess the relationship that I have with that mechanic. I know him and he's been servicing cars of my family since 1992. आज उनको 30 साल हो गए। एंड अगर मुझे सर्विस करानी है, मैं सिंपली कॉल करता हूँ, भैया ये काम है, गाड़ी घर से ले जाओ, चाबी ले जाओ, सर्विस करके रिपेयर करके वापस दे जाओ और मेरे से पैसे ले लो। दैट इज ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। Are you getting my point? And that happens because when he did something wrong, trust क्या होता है, दो जगह से बनता है। एक होता है रिलायबिलिटी से, बार बार अच्छी सर्विस मिल रही है, एक ट्रस्ट है। बट अकॉर्डिंग टू मी, द रियल टेस्ट ऑफ अ कंपनी इज हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, हाउ द एयरलाइन रिस्पॉन्ड्स देन will be a more important factor on building trust than आप एयरपोर्ट पे गए, प्लेन पे बैठे, प्लेन स्मूथली उड़ा, स्मूथली लैंड करा, छुट्टी। वो आपको याद नहीं रहेगा। आपको कौन सा एनकाउंटर याद रहेगा? जहाँ पे कुछ कलेश हुआ था। और वो कलेश इसलिए याद रहेगा क्योंकि उसमें कंपनी ने कुछ घपलाबाजी की होगी।
आई रिमेंबर मेरे साथ एक बार हुआ, लॉन्ग टाइम बैक, मैं बात कर रहा हूँ 97 98 की बात कर रहा हूँ मैं. वी हैड गॉन टू जामनगर. आई एम गिविंग अ रियल एग्जांपल. वी हैड गॉन टू जामनगर. जामनगर से दिल्ली के लिए फ्लाइट होती थी, सो इट वाज जामनगर बॉम्बे, छोटी फ्लाइट थी, देन बॉम्बे दिल्ली नॉर्मल फ्लाइट थी. सो व्हाट हैपेंड, जब हम लोगों को वापस आना था, हमारी कोई 2 o'clock की फ्लाइट होगी जामनगर से, 1 घंटे का फ्लाइंग टाइम था, 2 to 3 o'clock बॉम्बे एयरपोर्ट, और हमारी 6 बजे की फ्लाइट थी, 6 to 8 दिल्ली. 6 बजे बॉम्बे से टेक ऑफ करेगी और 8 o'clock दिल्ली पहुंचेगी. 3 घंटे हैं हमारे पास एयरपोर्ट पे टाइम पास करने को, तो हमें कोई रश नहीं था. तो हम गए एयरपोर्ट पे, हम 12 बजे पहुंच गए. 2 बजे की फ्लाइट थी, हम 2 घंटे पहले पहुंच गए. तो वहां जाके हमें पता लगा कि बॉम्बे एयरपोर्ट पे देयर इज दिस थिंग कॉल्ड वीआईपी मूवमेंट. कोई डिग्नेटरीज आ रहे थे, कोई प्राइम मिनिस्टर की फ्लाइट होगी या कुछ होगी, एंड दी बॉम्बे एयरपोर्ट वॉज शट डाउन फॉर 2 hours बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स. तो जो मेरी फ्लाइट 2 बजे जामनगर पहुंचनी चाहिए थी, वो फ्लाइट 3:30 बजे जामनगर एयरपोर्ट पे लैंड की और 5 बजे यहाँ से टेक ऑफ किया. मीनिंग 6 बजे पहुंचेगी, मीनिंग मेरी बॉम्बे वाली फ्लाइट मिस हो जाएगी, राइट? तो वो 4 घंटे जो मैं एयरपोर्ट पे था, आई थिंक इट वॉज इंडियन एयरलाइंस, पुरानी एयर इंडिया की जो प्रीकर्सर थी. तो व्हाट दे डिड, दे गिव एवरी पैसेंजर अ मील कूपन. 100 रुपीज़ का शायद कूपन था, एंड यू कुड टेक इट टू दी स्नैक शॉप इन दी एयरपोर्ट, और वहाँ पे आप कैश करके एटलीस्ट आपको कुछ खाने पीने को मिल जाएगा. नंबर 1. सेकेंड, इन माई केस व्हाट दे डिड, दे हेल्प मी बोर्ड दी बॉम्बे दिल्ली फ्लाइट एट 6 o'clock. जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे 6:05 पे उस प्लेन के अंदर बिठा दिया. वाई डू आई रिमेंबर? आई फ्लोन हंड्रेड्स तो नहीं बट डजन्स ऑफ टाइम्स. बट ये मुझे याद है बिकॉज व्हाट दे डिड, दे रिकवर्ड. कुछ गड़बड़ हुई, मे बी उनके कंट्रोल में थी, मे बी उनके कंट्रोल में नहीं थी, बट दे हेल्प सॉल्व इट. दिस इज कॉल्ड सर्विस रिकवरी. और मैं सर्विस रिकवरी अभी थोड़ा सा पहले शुरू कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट चैप्टर है बेसिकली. आई एम आस्किंग इट राइट नाउ बिकॉज सर्विस रिकवरी हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. जब कुछ गड़बड़ हो, उसको कैसे सॉल्व करा जाए, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू सर्विस का, भी लास्ट वीक की ही बात है. एंड अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आई वेंट टू माई नेबरहुड. मेरे बेटे का एक पजामा था, वो कहीं स्कूल गया होगा, कोई कील लगा, वो फट गया, रफू करवाना था मुझे. वेरी सिंपल थिंग. मैं मेरे घर के पास में एक वो ड्राई क्लीनर शॉप है, मैं उसके पास गया, भैया ये आप कर दो. एंड वो भैया मुझे जानते हैं बिकॉज वी स्टे इन द सेम एरिया, एंड ही इज बीन सीइंग मी फॉर द पास्ट 30 years. जब से उनकी शॉप है वो मुझे देख रहे हैं. मुझे हफ्ते में 2 या 3 बार वो मुझे सोशली भी मिल जाएंगे, बाजार में मिल गया, कहीं मिल गए. सो आई टोल्ड हिम, मैं भैया ये है. कहते हैं ठीक है सर, आप एक काम करो, आप ना इसको हफ्ता भर रुक जाओ, मेरा रफू वाला छुट्टी पे है. ही कुड हैव सिंपली केप्ट इट विद हिम एंड सेड भैया मैं दे दूंगा. व्हाई डिड ही टेल मी अपफ्रंट कि मेरा लड़का छुट्टी पे है? व्हाट विल हैपन? मैं लास्ट वीक गया था उनके पास, ही सेड मेरा लड़का 8 तारीख तक छुट्टी पे, मीनिंग नेक्स्ट वीक तक. सो इफ आई गिव द प्रोडक्ट टू हिम, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन हो जाएगी? मुझे 3-4 दिन में चाहिए. दैट विल बी माई एक्सपेक्टेशन. सो व्हाट ही डिड, he prevented a disaster from happening even before it started happening. भैया रहने दो. And now what am I doing? I am giving it to a competitor. But मेरे को ये पता है कि जब मुझे next काम करवाना होगा, मैं इन्हीं के पास जाऊंगा. What is service? This is satisfaction. It doesn't mean delivering a good product. Sometimes saying no is also part of satisfaction. नहीं यार, ये मेरे से नहीं होगा, प्लीज किसी और से करवा लो. क्योंकि अगर आप करोगे और उसमें गलती होगी, तो मैं किसको गालियां दूंगा? आपको दूंगा. एंड व्हाट विल इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सो ये मेरे साथ भी एक बार, मेरी गाड़ी CNG कार है, मेरे जो घर के पास वाला जो मेरा फैमिली मैकेनिक है सॉर्ट ऑफ, उससे प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई हो रही थी. सो व्हाट ही सेड, भैया आप इधर ले जाओ, मैं आपके साथ चलता हूँ. वी वेंट टू अ न्यू मैकेनिक हु हैड दैट इलेक्ट्रॉनिक, जो कार के अंदर प्लग होकर कंप्यूटर था उनके पास, स्कैनिंग कह लो उसको, हाँ जो भी था, स्कैनिंग है. ही हैड अ टैबलेट, उसने मेरे कार के पोर्ट में प्लग कर, ही पिक्ड आउट दैट दिस इज द प्रॉब्लम. सो द पॉइंट इज, माय मैकेनिक कुडंट डू इट, बट हाउ डिड ही प्रोवाइड गुड सर्विस? ही वेंट विद मी, ही गॉट मी टू द राइट पर्सन, ही इंश्योर्ड कि वो पूरा टाइम मेरे साथ रहे, मेरे को सर्विस देता रहे, इवन दो ही कैन नॉट रिपेयर द कार. कार रिपेयर होने गई GT कनाल पे, यहाँ पे एक CNG रिपेयर कंपनी है, उसके पास गई मेरी कार रिपेयर होने, वहां से ठीक हो के आई है. But who is still my friend? My neighborhood mechanic. Because he's given me more service
than our normal interaction of a car repair. वो मेरा फैमिली सर्विस दे रहा है मुझे, भैया मैं चलता हूँ आपके साथ, एंड ही डिडंट चार्ज मी ऑल्सो फॉर इट. Are you getting my point? That is service. Going the extra mile. But these kind of things are possible only in the informal economy. अब मैं एक बड़ी सी कंपनी हूँ, इंडिगो हूँ. I am an airline, I am Indigo, I am Air India, whatever. Can I give this personalized service to my customers? It is possible. But in many cases, it's a training issue जो हम नहीं दे पाते customer को service. It's a cost issue. It's a feasibility issue. Possible हर चीज़ होती है. But is it feasible right now? No. Budget है हर चीज़ का. ट्रांसपोर्टेशन में ऐसी सर्विसेज हैं, मतलब वो अगर आपको सेकंड हैंड कार वगैरह लेनी है शोरूम से लोगों को लेके जाओ, चेक कराओ वो सब. बट उसके लिए फिर वो लोग क्या कहते हैं, जो शोरूम पे आपको रेट मिलेगा, आप अगर अपनी कार सेल करने जाएंगे, इफ यू सेल इट टू अ मारुति और अ Hyundai और अ टाटा और एनीबडी इन एक्सचेंज फॉर योर न्यू कार, द रेट यू विल गेट विल बी अबाउट 30-40,000 लोअर. वही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है. सो अगर वो आपके साथ जा रहा है और वो काम कर रहा है, वो पैसे आपसे ले रहा है उस टाइम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे उनको हायर करो और अपने साथ लेके जाओ किसी सेकंड मतलब थर्ड पर्सन के पास और वो कार को चेक वेक करके बता दें. मतलब हाँ दे हैव देयर सम मिनिमल फीस, बट हाँ वो Fair enough. So we could try that. We could try that. There are lots of companies which offer so-called concierge services. ये concierge service में आता है. मूवी की टिकट चाहिए, मैच की टिकट चाहिए. You call them up, they will arrange it for you. You don't have to put in your effort. वो उनका service delivery है. So there are options. There are lots of growth available. That is why I'm saying service को ना आप अगर simply treat करोगे ना, आप गए एक service हुई आप आ गए. That is the wrong way of treating it. Service में सबसे important चीज हम आज discuss करेंगे, which will be this part. Building a relationship. हाँ जी बेटा बोलो. वही हम आज डिस्कस करेंगे. सर्विस रिकवरी हम जिसे कहते हैं. देयर इज दिस एंटायर टॉपिक अबाउट हाउ टू रिकवर समथिंग विच गोज रॉन्ग. अब आपका जैसे होता है पेन होता है, आप लोग पेन खरीदते हो ना, कभी ध्यान से देखना पीछे, लाइबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ पेन. अब आपने पेन लिया, आपने अपनी पॉकेट में डाला और वो पेन लीक कर गया, आपकी वाइट शर्ट है वो पूरी खराब हो गई. व्हाट इज द कंपनीज लाइबिलिटी? कहते हैं जी मेरा पेन है, मेरा पेन लीक करा, 10 रुपये का पेन है, मैं आपको 10 रुपये दे दूंगा दोबारा. उनका वहीं खत्म हो जाता है. बट हाँ जी सॉरी, मेजॉरिटी नहीं देते बिकॉज एवरीबडी हैज अ कॉस्ट प्रॉब्लम. कल को आपने किसी और का पेन डाला और बोला तुम्हारा पेन लीक करा है. It happens. I'm not saying that you do it, but it happens. So what companies typically do is, in a product, the liability is about just replacing the product. Right? पेन खराब हुआ, नया ले लो जी, छुट्टी, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट देयर वाज दिस केस येस्टरडे, मैं देख रहा था, इंडियन पोस्ट पे किसी ने अपनी एप्लीकेशन भेजी कहीं किसी कोर्स के लिए और वो पोस्टल सर्विस ने डिलीवर नहीं की. कल का या परसों का वर्डिक्ट है, मैं देख रहा था. द इंडियन पोस्टल सर्विस वाज फाइंड 3 लाख रुपीस because they didn't deliver on the service. उनकी लाइबिलिटी पार्सल लेने पे खत्म नहीं हो जाती, उनकी लाइबिलिटी है राइट पर्सन को ऑन टाइम डिलीवर करना. Are you getting my point? So the service encounter typically is longer. And secondly, आपको अगर पेन खराब होगा ना, आपको याद होगा मेरी क्लास 8th में एक पेन खराब हुआ था जिसको मैंने फेंक दिया था बाद में. याद रहेगा ये? नहीं. बट आपको वो टीचर याद रहेगी, इसने मेरे हाथ, मेरे नकल्स पे स्केल मारा था. क्यों याद रहेगा आपको वो चीज? As a service encounter happens here, a product encounter happens here. नहीं चलेगा, आप इसको फेंक दोगे, नया ले लोगे, रिप्लेस कर दोगे, रिपेयर कर दोगे. बट जो सर्विस encounter है वो यहाँ पे हमेशा रहेगा, अच्छा या बुरा. विच इज वाई वी ऑलवेज से, मैंने लास्ट टाइम भी शायद कहा होगा, आप लोगों को शायद याद होगा, a service encounter is what I call a one take movie. रीटेक का ऑप्शन नहीं है आपके पास मूवी में, एक ही बारी होगी. जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, कैन आई से नहीं नहीं बेटा डिलीट द सीन, वील शूट इट अगेन? डजंट हैपन दैट वे. इट हैपन्स ओनली इन अ मूवी. It doesn't happen in real life. So in real life,
training the employee to deliver good service in the first place itself is very important. अगर मैंने पहले इंटरेक्शन में गड़बड़ कर दी तो ना ट्रस्ट बन रहा है, ना लॉयल्टी बन रही है, ना रिलेशनशिप बन रही है, वहीं पे मैं छोड़ के दूसरी जगह चला जाऊंगा. So that is something that we need to focus on. So let's go ahead with what we are looking at. Yeah. How does the company decide if whatever they've done to recover from bad service is enough? Sometimes there is experience. कि अगर मैं इतना करूंगा तो मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है. There is experience. Second is feedback. Third is customer repeat purchase के लिए आ रहा है. That is the best way to do it. But for a big company, that becomes difficult. मेरे neighborhood मैकेनिक के लिए ठीक है, भैया आ गए वापस, भैया खुश हो गए, भैया वापस आ गए मेरे से रिपेयर करवाने. But for a company like Byju's, feedback becomes important. Word of mouth becomes important. Service industry में आपका सबसे बड़ा marketing tool is not your advertisement. It's word of mouth from an existing customer. यार ये ना अच्छा है बंदा, आप इसके पास चले जाओ, ये आपका काम ठीक कर देगा, जो भी काम है. मेरी कार का रिपेयर है. I'll give you another example, car repair only. मेरे एरिया में there is this very famous guy who does these what are called dry dents. Meaning आपकी कार थोड़ा सा डेंट होता है, वो निकाल देते हैं उसको without painting or anything. It's called a dry dent. Dry meaning no paint is involved. So there was this gentleman who had a very flourishing practice, and मैंने उनसे बहुत बारी अपनी कार ठीक कराई होगी जब छोटे मोटे डेंट्स लगते हैं. लास्ट ईयर, दिस ईयर ओनली इन मार्च, मैंने क्या हुआ, मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे आगे एक बस रुक गई, मैंने ब्रेक नहीं लगाई जोर से, मैं बॉनेट हिट द बस, कुछ नहीं हुआ, बॉनेट पे एक डेंट आ गया. मैं उस दिन शाम को गया उसी शॉप पे, द जेंटलमैन whom I'm talking to, पता चला he has left and his son has taken over. I have nothing against the son, he took it, so I assumed that the son has been trained by the father. So मैं भैया ये ठीक कर दो. उस भाई ने जैसे करा नहीं करा, वो ठीक नहीं हुई चीज़ पूरी. Then I had to go to my old denter and now he's fixed it. So अगर मैं उससे नाराज था, वो मेरी नाराजगी अब चली गई वापस. I am back to him like भैया तूने बहुत अच्छा काम करा. That come now if somebody asks me तो शायद मेरी गाड़ी लग गई, किससे ठीक करवाऊँ, इसके पास जाना. What am I giving? Word of mouth. And if you trust me, then you will trust my word of mouth. And my word of mouth is building on experience. जो हम, that he was saying, reliability, trust, and loyalty. So in the service encounter, word of mouth is the best. And I'm sure आप लोगों ने भी देखा होगा, सबने ट्यूशंस ली होंगी 10th, 11th, 12th में, different subjects, सबने लिए, everybody does, there is nothing wrong in it. How do you choose your tutor? Word of mouth. ऐसे तो randomly किसी के पास ही चले जाओगे ना, 4 लोगों से पूछोगे, कोई रेफर करेगा, किसी से पूछोगे भैया आपने कहाँ से पढ़ा, दीदी बताना आपके बेटे ने कहाँ से ट्यूशन ली, for example, and then you will send your child to that tutor because you had good word of mouth. अब वहाँ पे आप पढ़ाई की बात नहीं देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, word of mouth. Service में that is the most important thing. So let's go ahead. Now comes service recovery. Service recovery में perception is very important. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट बेटा, some issue, wait 1 second ना, okay, ठीक है, some structural thing, अब ठीक आ रहा है ना, हाँ जी बेटा बताओ, who had the doubt, क्या, हाँ जी, कैन यू रिपीट, मेरे को पूरा क्लियरली नहीं आया तो आई वांट टू आंसर इट क्लियरली. हाँ जी, राइट, ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ. Yes, so the score does matter. The scoring, yes, but when you look at the ratings, what are ratings again? Aren't they a sort of word of mouth? अगर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एयरटेल कॉल करता हूँ, एयरटेल वाले मुझे हमेशा कहते हैं सर आपको एक मैसेज आएगा प्लीज़ हमें रेट करना. यूजुअली मैं डिससैटिस्फाइड होता हूँ, मैं रेटिंग देता ही नहीं.
बट जब मैं हाईली सेटिस्फाइड होगा मैं तभी रेटिंग दूंगा, या मैं बिल्कुल ही सड़ा हुआ हूँ तब मैं कहूँगा नहीं रुको, आज मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे अच्छे वाला फीडबैक देता हूँ. सो व्हाट हैपेंस, रेटिंग्स गेट पोलराइज्ड. एंड स्कोर्स के साथ आई हैव दिस वेरी बिग प्रॉब्लम विद स्कोर्स, बिकॉज दो द टीचर माइट बी ब्रिलियंट, इफ द स्टूडेंट इज नॉट स्टडिंग, उसमें टीचर की गलती है कि स्टूडेंट की गलती है? यू कैंट कमेंट ना. स्टूडेंट बोलेगा टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, टीचर बोलेगा तुमने होमवर्क में असाइनमेंट्स नहीं करी, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, और इवेंचुअली मार्क्स कम आ गए. सो व्हाट हैपेंस विद सर्विस, वर्ड ऑफ माउथ बिकम्स अ गुड बेंचमार्क. आई एम नॉट सेइंग इट्स द ओनली टूल, but she is right that sometimes what happens is that the service provider and the customer, उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है सर्विस इंटरेक्शन. एंड देयर बी अ कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कस्टमर सर्विस डेस्क पे, आप मैकडॉनल्ड्स में बैठे, यू आर द गाय हु इज डिलीवरिंग, हु इज टेकिंग द ऑर्डर्स. ठीक है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आप सबने उसको एनकाउंटर करा होगा बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड्स में, जो आपसे ऑर्डर लेता है, राइट. नाउ इफ यू टेल हिम यार मुझे ना पिज्जा चाहिए मैकडॉनल्ड्स में, विल दैट बी पॉसिबल? नो. आप कुछ बोलोगे, आप आके, हैवंट यू सीन कस्टमर्स जो चिल्लाते हैं जाके शॉप में? बहुत सारे देखे होंगे जो जाके लड़ते हैं. अब उसमें सर्विस प्रोवाइडर की गलती है कि कस्टमर की गलती है? क्या पता वो कस्टमर जेन्युइनली बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तुमने जेन्युइनली उसका इतना सिर खा लिया कि वो आके बेचारा लड़ने पे मजबूर हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट हैपेंस इज, इफ आई हैव अ कस्टमर हु इज अब्यूजिव, will I give him the appropriate service? No. And if I have a service provider जो आलसी है, what will happen? It will have an impact on my service experience. So that is where the problem comes, the people part. Service में सबसे बड़ा, I'm repeating again in this class only, the people who are delivering the service are more important than the service itself. Which is why when you go to a good hotel or a restaurant, they are hiring people more for their service skills, not for anything else. आपसे कितने प्यार से बात करते हैं, that is very important. Are you getting my point? So service is a very complicated setup, and उसमें psychology, like I said again, this comes in. So please be very careful when you are examining a service. Use your brain. Don't look at only the numbers. Look at what the numbers don't say. ठीक है? So when we talk of service recovery, like we were sticking to that, you have to be responsive. So in Big Basket, I've had this experience. कभी वो delivery नहीं करते तो message आते थे, sir we are not able to deliver. वो डर जाते हैं. So that is called the bully behavior. बुली बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है. आप जैसे किसी अच्छे स्टोर में गए, वहां जाके चिल्ला लो आप एक बारी, क्या होएगा बेनिफिट? मैनेजर आ जाएगा भागता हुआ, सर क्या हो गया, सर क्या हो गया, मुझे बताओ, सर आप प्लीज आ जाओ, साइड हो जाओ. बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, हाँ जी, उसके बाद देख वही होता है ना. द पॉइंट इज कंपनी आपका चिल्लाना कितनी देर तक सहेगी? If you do it once or twice, they'll tolerate it. And if you are a very good customer, they'll tolerate it. But if you are not like, यार ये तो रोज तंग करता है ये अंकल आके. मेरे साथ था एक बैंक में, when I was in the bank, I was in the front line role. एक अंकल थे, he was retired. I have nothing against retired people. My father is also retired. And that uncle had nothing to do at home. He was bored. वो रोज आ रहे थे, बेटा मेरे पासबुक में ये वाली प्रिंटिंग ना एक लाइन ऊपर चली गई है, इसको प्लीज रीप्रिंट कर दो. और वो अंकल आते थे और हम लोग क्या करते थे, उठ के वॉशरूम भाग जाते थे. जो लेट उठा उसी का काम होता था वो अंकल को हैंडल करते थे. 3 of us ऑन द काउंटर. जिसने दूर से देख लिया वो भाग जाता था बिल्कुल वॉशरूम में सबसे पहले, अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल आ गए. सो देयर इज नथिंग अगेंस्ट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट, एंड ही वाज अ वेरी हार्मलेस कस्टमर. कभी लड़ाई नहीं की, कभी चिल्लाए नहीं, ऐसा ऑल दैट. बट एज अ सर्विस डिलीवरी गाय, मैं भी तो इंसान हूं ना. अगर इफ यू हैव सर्टेन सर्विस प्रेफरेंसेस, आई ऑल्सो हैव कस्टमर प्रेफरेंसेस. और मैंने एक चीज नोटिस की, आप लोगों ने करी या नहीं करी, आई डोंट नो इफ यू हैव डन दैट. मैंने एक चीज नोटिस की है, अराउंड 80% ऑफ द टाइम प्लीज और थैंक यू बोल के बहुत सारा काम हो जाता है.
In my experience, ladai is the last approach which I end up using. I have done this shouting in the store. मैंने ये भी करा हुआ है because I know उसके बिना वो सुनते नहीं है. But that is the last ditch thing. 80% of the time, if I am a good customer, I am a polite customer, I will get better service. Observe करना है इसको आप लोग कभी ऑब्जर्व करना. मैंने पोलाइटनेस से मैंने बहुत सारे काम निकलवाए हुए हैं. प्लीज एंड थैंक यू बोल के बहुत सारे काम जो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि होंगे. एक प्लीज, एक थैंक यू, एक स्माइल, बहुत कम हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज द सर्विस डिलीवरी गाय इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. कुछ नहीं, आप उसको एक 5 रुपए की पानी की बोतल दे दो जब वो घर आता है तो, भैया पानी पियोगे? गेट माय पॉइंट? एज सिंपल एज दैट. तभी तो उबर में यू गेट अ कस्टमर रेटिंग. कभी ध्यान दिया आपने आपकी कस्टमर रेटिंग कितनी है? मेरी 4.7 है. ये आप गो एंड चेक. द ड्राइवर ऑल्सो रेट्स यू. There is. Even I didn't notice that. My wife made me realize कि Uber में तुम्हें भी रेटिंग मिलती है. भाई टाइम से चले जाना, वो वेट कर रहा है तुम्हारी. अच्छा यार, मेरे I had the same exam. अच्छा मेरी भी रेटिंग होती है. I didn't know that. और उसमें पैरामीटर्स आर कस्टमर ने कितना शोर मचाया, कस्टमर ने कितनी एक्स्ट्रा सर्विसेज ली. कभी कभी होता है ना, भाई जरा 2 मिनट रुकना, मैं एक चिप्स का पैकेट लेके आ रहा हूँ. वो मना नहीं कर पाएगा, बट वो आपको माइनस मार्क्स देगा. भैया मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट रुको आप घर के बाहर. वो 5 के 15 मिनट हो जाते हैं. वो 5 के 15 मिनट हो जाते हैं. फिर वो भैया रोएगा. आपने उसको लोकेशन बोली, भैया ये ना इस स्कूल के पास में पहुंच जाना अपने आप. देन ही विल गिव यू अ डाउन रेटिंग. Everybody, so being a good customer is up to you. Being a good service provider is up to me. Are you getting my point? So दोनों का, both have to work together to get what is called a great service encounter. अब for example आप लोग की क्लास ले लो. Let's assume for 1 minute I am a brilliant teacher. ठीक है? Let's assume that. Okay? You don't need to comment on it. But if you guys are asleep in the class, who will recognize my brilliance? Nobody. आप तो सो रहे हो क्लास में आंखें खोल के. And what makes a class better? If you are awake and you are asking questions. अगर आप questions नहीं पूछ रहे, nobody knows I am a brilliant teacher. And my teaching is improved because you are asking questions. So क्या हुआ? And once we step out of the class, I would say we had a great class today. You would also say that. But does it happen कि सिर्फ वो मेरे पे डिपेंडेंट है या सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है? No, it's a combination. So to get a good service, you have to be a good customer also. Keep that point always in mind. ठीक है ना? So we had these service quality parameters. मैं अभी इस पे वापस नहीं जाऊँगा because we've had that earlier. You guys can read my notes previously. So हमने एक serve call करके एक framework किया था, service quality framework, which was basically giving numerifying the service. So like she very rightly said, मेरे को word of mouth से पता लगा ये tutor अच्छा है, but what am I looking at also? उसके बच्चों के results क्या है, कितने marks आए. And I'm sure आपने अपने एरिया में देखे होंगे some classes, some sir, और आपको एक वो बच्चों की 10-12 बच्चों की गंदी सी फोटोज लगी होंगी, इसके 98 आए जी, इसके ये आए, अकाउंट्स टॉपर, कॉमर्स टॉपर. हर मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स के बाहर भी ये लगा होता है. जो छोटे वाले स्कूल्स होते हैं, टू बिल्ड देयर ब्रांड दे कीप पुटिंग दीज, आई कॉल देम द मग शॉट्स. मग शॉट्स होते हैं बिल्कुल. ये अच्छा था. और जैसे ये आपके आकाश और फिक्जी वाले करते हैं, एलन वाले करते हैं, वो एक ही बच्चा होता है, उसने फिक्जी से भी पढ़ा होता है, एलन से भी पढ़ा होता है, आकाश से भी पढ़ा होता है, और तीनों के क्लासरूम कोर्स में होता है वो बच्चा. पता नहीं उसके 24 घंटे और मेरी 24 घंटे की डेफिनेशन में कहीं कुछ गैप है. बिकॉज व्हाट आर वी डूइंग? नॉट जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, वी ऑल्सो वॉन्ट नंबर्स. सो वर्ड ऑफ माउथ के बाद हमें डेटा भी चाहिए, हार्ड फैक्ट्स. दीज नंबर्स आर दी हार्ड फैक्ट्स. रैंकर्स जी, हमारे इतने रैंक वाले बच्चे गए, हमारे इतने लोग सिविल्स में सेलेक्ट हो गए इतने सालों में. दोज आर नंबर्स, हार्ड नंबर्स. सो इन सर्विस क्वालिटी, hard numbers is difficult because, like I said, service quality majority of the time is dependent on factors beyond my control. So ये वाला भी मेरे पास टाइम नहीं है वापस जाने का और वो सर्व कॉल करने का. प्लीज रीड द नोट्स एंड देन रीड दिस, दे आर सिमिलर. दिस इज प्राइमरली फॉर वेबसाइट्स, ES कॉल, और एक सर्व कॉल है मास्टर फ्रेमवर्क फॉर सर्विस क्वालिटी. वो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो मैं इसलिए अभी वहाँ नहीं जा रहा हूँ. ऑनेस्टली टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन बैक एंड रिवाइज्ड. Okay, now comes the question which is customer satisfaction. ठीक है? Now
keep this point in mind. There is a weak relationship. So if I am a satisfied customer, doesn't mean I'm going to spend more. So again with my mechanic, if the task costs 500 rupees and I'm satisfied with my mechanic, मैं उसको 1000 थोड़ी दे दूंगा, 500 दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 50 रुपए की एक टिप दे दूंगा, 1000 तो नहीं करूंगा ना. और जब तक मेरी गाड़ी खराब नहीं हो रही मैं उसके पास नहीं जाऊंगा ना. So I may be satisfied, but it doesn't have a direct impact on customer spending. Because satisfaction में आपका एक issue और होता है, because you are looking at price. आपको जहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट में, will you go with the discount or will you go with the satisfied service? Discount. Especially if it's a standardized product. So let's say आप जॉकी पे गए, आपने वहाँ पे एक बारी एक शर्ट ट्राई करी या एक ट्राउजर्स ट्राई करी, एक शॉर्ट्स ट्राई करी, जो भी करा ट्राई, आपका साइज फिक्स हो गया. एक बारी तो आप स्टोर से ले लोगे, रिपीट परचेज कहाँ ढूंढोगे? पहले अमेजोन पे ढूंढोगे तो सही ना. एक बारी अगर वहाँ पे सस्ता मिले तो आप जाओगे उस स्टोर पे दोबारा शायद जाओगे जब आपको कोई और चीज़ ट्राई करनी होगी. बट जो स्टैंडर्डाइज चीज़ आपको पता है यार यही साइज़ है, यही मॉडल नंबर है, यही डिज़ाइन है, यही कलर है, फिर ऑनलाइन मंगवा लो ना. फिर स्टोर पे जाने का क्या पॉइंट है? सो दो आई मे बी सैटिस्फाइड विद द स्टोर, बट एम आई गोइंग एंड स्पेंडिंग एट द स्टोर? मे बी नॉट. देन आई एम बाइंग थिंग्स ऑनलाइन. एक बार डिसाइड हो गया मुझे क्या साइज चाहिए तो फिर मैं ऑनलाइन ही मंगवाऊंगा ना. व्हाई गो टू द स्टोर, राइट? सो वी हैव टू, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज लो. बट इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल शो यू हाउ कस्टमर सेटिस्फैक्शन builds in reliability, and this has to translate into repeat purchases. अगर आपकी customer satisfaction सिर्फ standalone है, then your ROI is very weak. But if you can leverage that satisfaction into a repeat purchase, जैसे आपके पास एक कोई, let's say for example आपके पास एक भैया हैं so called, जो आपको फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, आपने उनसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई, LIC के एजेंट हैं, ठीक है. अब यू आर सेटिस्फाइड विद दैट जेंटलमैन, राइट? ही इज गिवन यू गुड सर्विस, आपको रिटर्न्स भी अच्छा है, सब कुछ साफ साफ हुआ आपका काम. अब आपको मेडिकल पॉलिसी चाहिए, किसको पूछोगे सबसे पहले? अगर आप उसी भैया को पूछ रहे हो तो देन दिस स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड, क्योंकि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बाद अब आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, तब ये स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाएगी. बट इफ दैट जेंटलमैन प्रोवाइड्स ओनली अ fixed service and I cannot talk to him about other services, then this statement remains true, क्योंकि relationship building का scope नहीं है. मैं एक होटल गया, मैं उसमें वहाँ पे मैंने खाना खाया, would I go back? I am very satisfied. Unless I go back, then this statement is true. या मैंने एक होटल, या फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू अ चेन होटल, ओबरॉय, ताज, जो मर्जी कह लो, I went to that property in Shimla, for example, और अब मुझे जयपुर जाना है और मैं जयपुर में उसी कंपनी के होटल में रहता हूँ, तो then this statement is wrong. This statement is rejected because now I am getting return on investment. I was satisfied with property in Shimla by hotel chain X. मैं होटल चेन X की जयपुर वाली प्रॉपर्टी में गया, क्यों? क्योंकि मैं satisfied था उसकी शिमला वाली प्रॉपर्टी से. And that is when this ROI, this statement gets rejected. But अगर मैं दोबारा कहीं नहीं जा रहा हूं तो then this statement remains true. ठीक है? So सर्विस पे फोकस करना is very important. Delighting the customer is very important. Keeping them happy is very important. But it also has to translate into money. अगर वो मनी में ट्रांसलेट नहीं करता है तो जो भी मेरा एफर्ट है वो वेस्ट हो रहा है. It is not giving me the full return on my investment, which is why this statement is true. ठीक है? Then comes the service encounter. Okay, अब ये इसमें मैंने क्या लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं जा रहा. What have I done? हाँ, okay. Now comes the service encounter, जो हमने बात शुरू की जहाँ से क्लास में कि I have a service, I have an encounter. Now this service encounter में सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा ऊपर वाला, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ. नाउ टेक एन एग्जाम्पल, नाउ टेक अ सर्विस एनकाउंटर. आप एक होटल में गए,
ठीक है, दिस इज बिल्ट ऑन अ होटल. मैंने टेक्स्ट बुक से लिया था, बट देन आई एडेड माई ओन नोज इन टू इट. सो आई हैव गॉन टू अ होटल. द ग्रे बॉक्सेस आर माई स्टेप्स, जो स्टैंडर्ड स्टेप्स है. द रेड वंस आर द प्लेसेस वेयर द सर्विस इनकाउंटर एक्चुअली हैपन्स. आप चेक इन में गए, आपने होटल में बुकिंग की. आई डोंट नो इफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस, बट इफ यू गो टू अ होटल, मेरे साथ ये हुआ था एक बार. आई बुक्ड अ होटल इन आगरा वीकेंड ट्रिप के लिए. फ्राइडे इवनिंग गए और संडे आ गए. 2 night ट्रिप था. बट व्हाट दीज गाइज डिड वाज, 2 days बिफोर द ट्रिप वाज सपोज टू हैपन, दे कॉल्ड मी एंड दे हैड अ क्वेश्चनर. सर आप क्यों आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, आप किस पर्पस के लिए आ रहे हो, आपके साथ कितने फैमिली मेंबर्स हैं. दे वर आस्किंग मी ऑल दीज क्वेश्चंस, एंड इन दैट क्वेश्चन दे फिगर्ड आउट कि उस वीक मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, एंड आवर लॉजिक ऑफ गोइंग वाज टू सेलिब्रेट आवर मैरिज एनिवर्सरी. ठीक है, सो दे फिगर्ड दैट आउट फ्रॉम दैट क्वेश्चनर. एंड व्हाट दे डिड व्हेन वी रीच्ड द होटल, 1 hour लेटर, कुछ नहीं किया उन्होंने, चेक इन वेक इन पे कुछ नहीं किया, बट नॉर्मल चेक इन, सर ये आपका रूम है, आपको दिखा दिया, आप सेटिस्फाइड हो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो लोग रूम बंद करके चले गए. 1 घंटे बाद somebody knocks and there's a cake, free of charge. There's a cake delivered to our room as a gesture from the management celebrating our marriage anniversary. 100 रुपए का केक नहीं होगा उनके लिए, 150 रुपए का पड़ेगा उनको. लेकिन उनको क्या बेनिफिट मिला? that encounter happened in July 2015. आज उस बात को 8.5 साल हो गए. What are they still getting out of it? Word of mouth. अभी तक मिल रहा है उनको, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं. Are you getting my point? मैं नेम नहीं ले रहा because I am not promoting or supporting any brand or anything like that. But this is pre-check-in. And then they had a parking spot for me. उन्होंने मेरी, and then होता है ना डिलाइटर चेकआउट. चेकआउट पे डिलाइटर. वी वेंट जुलाई में, ऑब्वियसली बारिश हो रही होती है दिल्ली आगरा में बारिश हो रही. इट वाज नाइस वेदर, बट दोज ऑफ यू ड्रिवन कार्स इन रेन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो गाड़ी गंदी हो जाती है बाद में. वो बिल्कुल डोर हाइट तक पूरी ब्राउन हो गई थी मेरी गाड़ी, ऊपर ग्रे नीचे ब्राउन, ऐसा कलर था. एंड आई लाइक यार कौन साफ करेगा, घर जाएंगे देखी जाएगी. संडे मॉर्निंग आई पिक्ड अप माई कार एंड दे हैड मेड श्योर कि मेरी कार क्लीन है, धुली हुई है. किसी को लगाया था उन्होंने वहाँ पे. दे हैड अ गाय इन द पार्किंग लॉट हु वाज क्लीनिंग कार्स. दैट वाज हिज ओनली जॉब. सो डिलाइट, 50 रुपए नहीं लगे होंगे उनके गाड़ी साफ करने में. कितना कॉस्ट होता है? 50 रुपए लगे होंगे. 50 रुपए लेता है गाड़ी साफ करने वाला, और कितना ले लेगा, राइट? बट उनके लिए 50 रुपीज डिडंट मैटर. बट व्हाट आर दे स्टिल गेटिंग? Positive word of mouth. So the service encounter has lots of factors in it, and these are all room service. Billing issues, billing में गलत billing हो गई आपके साथ, that's an issue. How do we resolve it? Is an impact on service delivery. So now comes the question, where to take feedback? Should I take feedback at the start of the trip, or at the end of the trip, or in the middle of the trip? That is where the question comes. कस्टमर कहाँ पे सेटिस्फाइड ज़्यादा है, तभी उससे आप फीडबैक लो. द टॉप पार्ट विच इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ. ओके, सो इन फॉर एग्जाम्पल इन द ट्यूशन सेंटर एग्जाम्पल, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ विल बी जब आपके मार्क्स आते हैं. अच्छे आ गए तो दैट्स द टाइम टू टेक फीडबैक. बुरे आ गए, प्लीज इससे फीडबैक मत लेना, ये गालियाँ देगा. एवरीबडी डज दैट. यू वॉन्ट गुड फीडबैक. You want good feedback. And there are some companies who will actively take good feedback. वो satisfied customer को ही approach करते हैं feedback के लिए. जो नाराज होते हैं उसके वो जाते ही नहीं. Because that is the problem. Okay. Then we look at types of service encounters. They can be defined into 2 or 3 types. So एक है आपका face to face. मैं बैंक ब्रांच गया और वहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉई से इंटरेक्ट किया. दैट्स अ फेस टू फेस. ठीक है. देन अ रिमोट एनकाउंटर इज आई कॉल अप अ कॉल सेंटर. वो रिमोट है, फोन पे ही बात हो रही है हमारी. आई विल नेवर सी दैट गाय, दे विल नेवर सी मी, एंड वी जस्ट कनेक्टिंग ऑन द फोन एंड दे जस्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर मी. एंड टेक्नोलॉजी मीडिएटेड एनकाउंटर्स आर थिंग्स लाइक Banki app, right? So in different portions,
all of these encounters combined will have a rating on my level of customer satisfaction. तो अगर मैं कहता हूँ कि ब्रांच में स्टाफ बहुत अच्छा है, so I'll give you one example. My parents have an account with the government bank. Staff is nice. उनके आप प्यार से बात करो, वो आउट ऑफ द वे भी जाके हेल्प कर देते हैं, ठीक है, नथिंग राइट, दे गुड एम्प्लॉइज. बट उनका जो एटीएम है वो 100 में से 95 टाइम्स चलता नहीं चलता है वो एटीएम उनका ना. जब जाओगे वो खराब होगा, या उसमें पैसे नहीं होंगे, या प्रिंट नहीं हो रहा होगा, या नोट नहीं डिलीवर कर रहा होगा, कुछ उसमें घपलाबाजी होगी. सो दिस थिंग गिव्स देम अ नेगेटिव स्कोर. This thing gives them a positive score. टोटल करके आपको एक स्कोर आएगा. That score will have be your level of customer satisfaction. अब मेरा एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, उसका 100 में से 95 टाइम्स एटीएम चलेगा, 5 टाइम्स नहीं चलेगा. एंड दे हैव अ गुड ऐप, उनकी ऐप भी अच्छी है, मैं यूज करता हूँ, डेली यूज करता हूँ लिटरली, यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए भी. उनका ब्रांच का स्टाफ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, which gives me a overall good service picture. So problem क्या होती है, सर्विस एनकाउंटर मैंने इसलिए लिखे हैं ये सारे इधर, because what happens is हम एक दो चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ब्रांच अच्छी है, ब्रांच का स्टाफ अच्छा है, बट हमारी ऐप बकवास है, और हम कस्टमर कहते हैं आप ऐप पे ट्रांजैक्ट कर लो, और ऐप ने चलना है नहीं, ट्रांजैक्ट करके मैं क्या कर लूँगा वहाँ पे. So it has an impact on it. So every service encounter has a value. Think of it like every ball of every over has a value. अगर डॉट बॉल है तो वो आपके लिए मिसिंग है. Same thing happens here. Too many dot balls, your scoring rate goes down. Translating into this, too many problems here will mean that the customer is dissatisfied. फिर वो उसको dissatisfied वाली साइड चला जाएगा. Less problems means he is more satisfied. And if he is more satisfied, so जैसे मेरा वो बैंक है, फन फैक्ट, वो वही बैंक है जिसमें मैं, जो मेरा प्राइवेट बैंक है, इट्स द सेम बैंक इन विच आई स्टार्टेड माई कैरियर. बैंक के जो मेरे सीनियर्स थे वो एक नंबर के निकम्मे थे, कीवर्ड थे, बट मेरे को बैंक की सर्विसेज इतनी अच्छी लगी कि मैं पिछले 16 साल से वही बैंक यूज कर रहा हूँ. Are you getting my point? So I may have one blip on it from my personal experience as an employee, but as a customer my experience has always been nice. और उसमें क्या होता है, अगर आप कहते हो ना माई एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बीन नाइस, कोई एक छोटी मोटी गड़बड़ होगी भी ना, आप इग्नोर कर दोगे. एक बार क्या हुआ, उन्होंने मेरे, आई हैव अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम दैट बैंक, उन्होंने मेरा एक दिन डिले हो गया पेमेंट करने में क्रेडिट कार्ड, उन्होंने मेरे को 1200 रुपये का बिल लगा दिया, 700 रुपये एंड इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग करके. तो यार मेरे को, आई कुड हैव स्क्रीम्ड एट देम, आई कुड हैव शाउटेड, चल यार एक ही बारी हुआ है, मैंने छोड़ दिया. माई कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टिल रिमेन्स हाई विद दैट बैंक. Are you getting my point? So every encounter has its value. Now sources of pleasure and displeasure. How do I recover a failure? So I give you Indian Airlines वाले example. उन्होंने हमें meal coupon दे दिया. As per policy, that was their policy. But sometimes what happens ना, staff deliver नहीं करता है. Maybe the staff has not been trained. कि भाई तुम्हारे को ये करना है, ये कर दो, नहीं तो कस्टमर लड़ना शुरू कर देगा. But staff वो तब आता है जब आप लड़ोगे ना, अच्छा सर मैं आपको देता हूं एक कूपन, रुक जाओ. विल दैट कूपन स्टिल हैव वैल्यू एज कंपेयर टू डियर पैसेंजर्स, प्लीज कम टू काउंटर नंबर 1 एंड कलेक्ट अ मील कूपन एज अ थैंक्स फॉर योर पेशेंस. बेटर क्या लगेगा? खर्चा मुझे उतना ही पड़ा, अब मैं नाक लेफ्ट हैंड से पकड़ू या राइट हैंड से पकड़ू, फर्क तो पड़ता है ना उसमें पकड़ने में. You're getting my point? How do I turn that encounter into a positive thing? Dear customers, we are very sorry for your flight getting delayed, but it is because of VIP movement at Bombay Airport. We cannot do anything about it. But to show our thanks for your patience, please come to counter number 1, collect a meal coupon. Collect a snack. या लड़के बाहर 10 का कस्टमर उसको मैनेजर को घेर लेते और फिर मैनेजर कहता है अच्छा रुको यार मैं आपको कुछ खाने पीने का कूपन दे देता हूँ. Are you getting the difference? That is recovery. जो कंपनी अपनी मिस्टेक एज अ कस्टमर रेप अपनी मिस्टेक इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ले. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने देखा होगा, एयरटेल में मैं जब भी कॉल करता हूँ, दे हैव बीन ट्रेन्ड एंड दे से, जब भी आप उनको बोलो आई हैव एन इशू विद समथिंग, सर वी आर वेरी सॉरी आपके साथ ऐसा हुआ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ उसको रिजॉल्व करने में. एंड अनदर कंपनी, हाँ जी सर इशू बताओ,
फर्क क्या है? एक लाइन ही तो है, मुझे नहीं पता वो लाइन इसलिए बोला क्योंकि उसको डंडा मारा गया, मैनेजर सुन रहा है उसकी कॉल, उसको कोई वो नहीं है कि उसको कोई अपॉलॉजी नहीं है कि मेरी एयरटेल की सर्विस नहीं चल रही, बट द पॉइंट इज इट जस्ट टिक्स अ बॉक्स. उन्होंने मेरे से पोलाइटली बात की, जस्ट टिक्स अ बॉक्स. काम दोनों नहीं करना है, बट इज जस्ट द वे ऑफ डूइंग इट विच मैटर्स, दैट्स ऑल. ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है. सो रिकवरी, अडेप्टेबिलिटी, कैन आई रिस्पॉन्ड टू कस्टमर नीड्स. सर इनकाउंटर का फिजिकल मतलब क्या हुआ? जैसे वे ऑफ डिलीवरी या सेक्शन ऑफ द आप क्लास के अंदर घुसे, मैं खड़ा हूँ, ये इनकाउंटर है. आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये इनकाउंटर है. मतलब वे ऑफ डिलीवरी ऑफ दैट सर्विस, मे बी वे ऑफ डिलीवरी, मे बी द एम्बियंस. अब यही हम पेड़ के नीचे कर रहे हो धूप में, कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा. स्कूल में हम लोग मुझे बड़ा शौक था वो करने का ऐसे, बट देन आई रियलाइज कि मुझे चिल्लाना बहुत पड़ता है, इसलिए अब क्लासेस क्लासरूम में ही होती है, सॉरी फील्ड में नहीं होती, बट ओनली इन विंटर्स ऑल्सो, दैट टू. सो द एनकाउंटर कैन जस्ट बी अ सिंपल एनकाउंटर. आप गए एटीएम में कार्ड डाला, पैसे निकाले, आ गए, दैट्स ऑल्सो एन एनकाउंटर. आप एक 2 घंटे की क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो भी एक एनकाउंटर है. आप 5 दिन एक ही होटल में रह रहे हैं, वो भी एक एनकाउंटर है. एनी टाइम व्हेन यू एज अ कस्टमर एंड द सर्विस डिलीवरी इंटरैक्ट, दैट इज एन एनकाउंटर. उसकी लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता. सो एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी इंटरैक्शन इज एन एनकाउंटर. उसका कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एनकाउंटर. आप मेट्रो में गए, आपने मेट्रो में अपना कार्ड पंच किया, दैट इज एन एनकाउंटर. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. देन अडेप्टेबिलिटी, हाउ कैन आई रिस्पॉन्ड टू कस्टमर रिक्वेस्ट. भाई ये भी कर दो, वो भी कर दो, मुझे ये सर्विस चाहिए. समटाइम्स एवरी सर्विस मे नॉट बी पॉसिबल. सो आई रिमेंबर, मैं कोई होटल में गया था, मैं सन वॉज अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ ओल्ड. तो हमने उनको बोला कि मुझे ना रूम में माइक्रोवेव चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे को रात को दूध पीना होता था. तो हम मिल्क था हमारे पास, वी हैड अ फ्रिज, मिल्क को गर्म करके हम उसको पिला देंगे. बट इन दैट होटल फॉर सम रीजन दे कुड नॉट प्रोवाइड मी विद अ माइक्रोवेव. क्या रीजन था मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, छोटी सी बात है, मुझे याद नहीं. बट मुझे ये याद है कि रात को 3 बजे भी मैं हाउसकीपिंग को कॉल करता था, मुझे गर्म दूध चाहिए, तो रात के 3 बजे भी गर्म दूध आया है मेरे बेटे के लिए. अडेप्टेबिलिटी. नहीं है मेरे पास माइक्रोवेव, चलो मैं आपको सर्विस दे देता हूँ, किचन के थ्रू आपको गर्म दूध मंगवा देता हूँ. अडेप्टेबल. देन स्पॉन्टेनियस, जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने मेरे से पूछा, मैं अपनी एनिवर्सरी के लिए आया, उन्होंने स्पॉन्टेनियसली मुझे एक केक दे दिया लाके. छोटा सा केक था, 250 ग्राम्स का केक होगा, 2 लोग कितना खा लेंगे एनी वे. सो स्मॉल केक, 2 कैंडल्स, 1 नाइफ, 1 प्लेट, सबको प्रॉपरली, ऑब्वियसली 4 स्टार होटल है तो प्रॉपरली करेंगे वो लोग. बट वो स्पॉन्टेनियस था वो केक. मैंने नहीं मांगा, ना मैंने उनको बोला कि मुझे चाहिए, ना मैंने पेमेंट की उसकी. दैट्स अ स्पॉन्टेनियस. एनीथिंग विच इज गिवन एक्स्ट्रा. अच्छा सर आप बैंक में आए, अच्छा सर आपकी पासबुक अपडेट हो गई, अच्छा सर मैं आपको ना स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ 2 महीने की, आपको पासबुक में पढ़ने में दिक्कत हो रही है. स्पॉन्टेनियस. 2 पेज ही तो निकलने हैं, बट कस्टमर खुश हो जाएगा उस 2 पेज से. ठीक है ना. एंड कोपिंग, हाउ डू आई हैंडल दी अंकल आ गए वाला सिचुएशन, वेयर देयर, दिस इज कॉल्ड द कस्टमर फ्रॉम हेल. आता है, टाइम खर्च करता है, विच इज वाई इफ यू रिमेंबर, मैंने एक बार शायद आपकी क्लास में, दिस इज माई मार्केटिंग का एग्जाम्पल. अब मैं एक स्टोर में गया, मैंने जाके एक शैम्पू का सैशे खरीदा या एक 600 रुपए की बड़ी वाली बॉटल खरीदी. वॉट इज द टाइम टेकन फॉर द एनकाउंटर? सेम है. वो 2 रुपए का सैशे, ये 600 रुपए की बॉटल है. किस में मार्जिन ज्यादा है डीलर के पास? ऑब्वियसली 600 रुपए वाली बॉटल में. बट टाइम तो उतना ही लगा ना वो 2 रुपए के शैम्पू में भी. सो हाउ डू आई कोप विद द प्रॉब्लम कस्टमर? वो आता है, वो 2 रुपए का शैम्पू लेगा और 5 क्वेश्चन पूछेगा, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना. सो what happens is, how do I cope with them? In some cases you are polite, in some cases you run to the washroom and leave it to your colleague, संभाल इसको मैं भाग रहा हूँ. So it works both ways. How do I cope with them? And thirdly, इसमें एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, which is how much of support do I give to my employees? अब कस्टमर चिल्ला रहा है और मैं मैनेजर हूँ, आई स्टेप आउट ऑफ माई ऑफिस एंड आई सी अ कस्टमर एंड अ सर्विस रिप्रेजेंटेटिव फाइटिंग. कस्टमर उसको डांट रहा होगा ऑब्वियसली, दैट्स द नॉर्मल एनकाउंटर. अब मैं किसकी बात सुनूं? मैं भी एम्प्लॉय को डांटना शुरू कर दूं, या मैं कस्टमर को डांट दूं? क्यों चिल्ला रहे हो तुम, बताओ मुझे क्या हुआ है. आई कुड डू दैट ऑल्सो. इफ आई सपोर्ट माई एम्प्लॉयज अगेंस्ट बैड कस्टमर्स, दे विल बी लॉयल एम्प्लॉयज. और अगर वो लॉयल होंगे तो वो अच्छी सर्विस देंगे.
employees need support. Unless the company supports the employee in that situation, एम्प्लॉय क्यों लड़ेगा कस्टमर से, क्यों भिड़ेगा? आए करो जाओ, मैं एक्स्ट्रा क्यों करूंगा? और जब तक मैं एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, व्हाट विल बी योर सेटिस्फैक्शन लेवल? यहीं पे रह जाएगी. एक्स्ट्रा करूंगा तो ऊपर जाएगी ना, स्पॉन्टेनियस करूंगा, अडेप्टेबल करूंगा तो ही ऊपर जाएगी ना. यू हैव टू कीप द एम्प्लॉय ऑल्सो हैप्पी, नॉट जस्ट कीप द कस्टमर हैप्पी. ठीक है? सो ये है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन रीड. अभी बहुत छोटा है, आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू फिगर आउट. सो दीस आर एग्जांपल्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. जो हमने डिस्कस करे 4 पॉइंट्स, उन्हीं के ये मोर डिटेल्ड एग्जांपल्स है. यू गाइस कैन रीड देम वंस यू टेक द नोट्स फ्रॉम मी. मैं इसको स्किप कर रहा हूं अभी. ठीक है? टेक इश्यूज ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. ठीक है? ये दिस इज अ बिग प्रॉब्लम टुडे. एआई बेस्ड बॉट है या आपके वो चैट बॉट्स आते हैं ना आजकल. तो मेरे एयरटेल ने शुरू किया ये, एयरटेल की ऐप पे, एयरटेल थैंक्स वाली जो एयरटेल ऐप जो है उस पर एक चैट बॉट है. प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम. और उसको जो मर्जी बोलो, उसको कुछ नहीं समझ में आता है. उसको बिल्कुल समझ में आया, उसको जो मर्जी बोलते रहो, वो उसको होता है, उसके वही स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होते हैं. प्लीज कॉल दिस, थैंक यू, आई होप आई हैव बीन एबल टू रिजॉल्व. मन करता है इसके अंदर घुस के उसको एक लगाऊंगा, बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व. और एक मेरे कोटक ने शुरू किया था, मेरा एक बैंक है उसका. मैंने क्या किया, कस्टमर कॉल सेंटर पे कॉल की. उन्होंने तब नया नया ये ड्रामा शुरू किया था. देयर वाज दिस एआई असिस्टेंट एंड इट वुड कम, प्लीज टेल मी इन सम फ्रेजेस व्हाट इज योर प्रॉब्लम. मैं उसको बोल रहा हूँ क्रेडिट कार्ड, वो सेविंग्स अकाउंट में जा रही है. अरे भाई, मेरे को क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम है, कहाँ जा रहे हो आप? इट वुड नेवर अंडरस्टैंड मी. पता नहीं या तो मेरी लैंग्वेज का इशू है या वट एवर. दैट एआई बॉट वॉज कंप्लीटली मेनियाकल था. अच्छा अच्छा, मैंने ट्राई नहीं करा है, ये मुझे याद है. बट ऑन द अदर हैंड, इफ आई हैव सीरी फॉर एग्जाम्पल, सीरी वर्क्स. सीरी को आप जो मर्जी बोलो, 90% ऑफ द टाइम शी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम आस्किंग हर. अलार्म सेट करना है, फोन पे कुछ करना है, सीरी अंडरस्टैंड्स. मे बी दैट्स डाउन टू क्वालिटी, मे बी दैट्स डाउन टू लर्निंग, क्योंकि एप्पल बहुत सारा कस्टमर डेटा कलेक्ट करता है. एंड मैंने सीरी के साथ एक चीज़ देखी है, इफ़ यू आर सेइंग अ नेम जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, चाहे वो इंडियन नेम हो, हिंदी नेम होगा ना, तो उसको नहीं समझ में आएगा, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट से पकड़ लेती है. सो दे विल फिगर आउट. अच्छा, आई सेड सम ड्राइवर, सो शी विल फिगर आउट, अच्छा ये ड्राइवर है, वो पिक कर लेगी नाम. कॉल पर्सन एक्स, शी विल पिक आउट दैट नेम. दैट इज वेयर इंटेलिजेंस कम्स इन. एंड सेकेंडली, आई डोंट नो, विद मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन कह लो आप मुझे, या ओल्ड स्कूल कह लो, जो मर्जी कह लो, आई डोंट लाइक दीज चैट बॉट्स. मेरे को आप IVR मेन्यू दो जिसमें नंबर्स हो, बटन्स हो, प्रेस करते जाओ, फिर लास्ट में प्रेस 9 टू कनेक्ट टू अ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव. मुझे वो समझ में आता है, मुझे AI बॉट नहीं समझ में आता. पर्सनली आई डोंट लाइक दिस कंसेप्ट. बट इन टूडेज वर्ल्ड एवरीबडी हैज अ बॉट. सर वो फ्लॉप भी तो हर एक तरीके से. हाँ, बहुत है. फिर जो भी किसी को प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्टली कनेक्ट ही करता है फिर. नहीं करते, लास्ट कभी कभी करते हैं. कभी कभी मेरा किया के साथ, तो कोटक की जो AI थी, इट वाज कॉल्ड किया. मेरी और किया की बिल्कुल दोस्ती नहीं थी. एंड इवेंचुअली आई वुड गिव द फोन टू माई सन, बेटा कुछ भी बोलता रहे. फिर थोड़ी देर बाद किया कहती है, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आई एम कनेक्टिंग यू टू आवर IVR मेन्यू ऑप्शन. जो मुझे पहले चाहिए था. भाई डेवानी मुझे दिखा दे, क्यों मेरे 3 मिनट वेस्ट करे लड़ने के तेरे से. सो इट वॉज देयर, आई डोंट नो. एंड उसके बाद से आई स्टार्टेड, आई डोंट लाइक दीज AI बॉट्स, आई डोंट नो व्हाई. मुझे जेन्युइनली AI बॉट्स पसंद नहीं है. बट द पॉइंट इज, AI बॉट क्यों यूज कर रही हैं कंपनीज? बिकॉज इट सेव्स मनी, इट सेव्स कॉस्ट. सेकेंडली, एक मैंने एक देखा था, आई डोंट नो आजकल आप लोगों ने ट्राई करा कि नहीं, आजकल मेनी ऑफ द कंपनीज आर इंकरेजिंग यूज अ चैट विंडो. डोंट कॉल, कॉलिंग में ज्यादा पैसा लगता है. चैट विंडो में a live human being will come and chat with you, but it is a little bit easier and they can handle multiple complaints together. कॉल में क्या, आपका एक बार आप कॉल सुन रहे हो तो आप एक ही कस्टमर को डील कर सकते हो. चैट में क्या, एक को डील करा, दूसरा टाइप कर रहा है, तीसरे तक गए, फिर आप वापस 1 पे आ गए. सो एज अ कस्टमर आपके लिए भी कन्वीनियंट है, आपको फोन पे घंटा भर वेट नहीं करनी पड़ती. You can just type or chat, wait for the response to come, and you keep doing your other work. So there are technologies, and as we go along, we'll see more and more
गुड क्वालिटी इंप्रूवमेंट. जब सीरी नई नई थी, सीरी वॉज कम्प्लीटली इडियोटिक, उसको कुछ नहीं समझ में आता था. बट नाउ सीरी लर्न्स एंड सीरी अंडरस्टैंड. ओके गूगल को भी समझ में आता है, अलेक्सा को भी समझ में आने लग गया अब थोड़ा थोड़ा. अलेक्सा नई नई थी अमेजोन म्यूजिक पे, उसको सामने आपके वो दिख रहा है वो म्यूजिक का नाम है, यू आर सेइंग अलेक्सा प्लीज प्ले दिस सॉन्ग. आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. अभी सामने खुला हुआ, इसी को तो प्ले करना है, मेरे को आला सारे बटन दबाने. आई एम जस्ट ट्राइंग आउट द सिस्टम. अलेक्सा वो भी नहीं करती थी. सो टेक के साथ ना इट्स अ लव हिट रिलेशनशिप. अनफॉर्चुनेटली इट्स लव हिट, सो वी हैव टू सी हाउ इट वर्क्स ऑन. बट एक और एग्जाम्पल हम टेक का करेंगे, वेयर वी टॉक ऑफ कस्टमर डेटाबेस. व्हेन दे नो आज आपका बर्थडे है, इस मंथ में आपकी एनिवर्सरी है, इस मंथ में आपके बेटे का बर्थडे, आपके बच्चे का बर्थडे है, दे कीप गिविंग यू स्पेशलाइज्ड ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स एंड कूपन्स एंड सर्विसेज. दैट इज बेनिफिशियल फ्रॉम टेक्नोलॉजी. कि मुझे बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल मिल रहा है, मुझे करेक्ट चीज मिल रही है उस पर्पस के लिए, नॉट सम रैंडम emails that keep coming about ये product ले लो या ये service ले लो. So that is the good part. So we've discovered this. We've had our example we've had example of bots which are inefficient or inappropriate or idiotic, whatever word we want to use. Then we have different customers. So we can divide the customers into certain parts and then we can adjust their technology needs and the amount of technology we are delivering accordingly to them. Okay, then comes understanding my customer. ये ना थोड़ा सा theoretical है, so I will not spend too much of time on it because this is basically about customer research. And customer research में there isn't really too much for me to say because it is primarily a need based thing. और ये ना generic है. ये आपने मार्केटिंग में भी कवर करा होगा. इफ यू रिमेंबर मार्केटिंग में जब आपने पढ़ी थी सेम 1 में, यू वुड हैव डन दिस कंसेप्ट कॉल्ड मार्केट रिसर्च. कस्टमर रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च आर फेयरली सिमिलर टू ईच अदर. सो यू कैन रीड माई स्लाइड्स, यू कैन रीड योर टेक्स्ट बुक, यू कैन रीड योर SLM, उसमें ये कवरेज है इसकी. आई डोंट थिंक इसमें मेरी कोई बहुत ज़रूरत है बोलने की. सो आई एम स्किपिंग दिस वन पोर्शन एंड देन आई एम गोइंग ऑन टू the more important part, which is building a customer relationship. That is the most important part according to me on service marketing. This is the sort of हम लोगों ने जितनी मेहनत की है वो यहाँ पे आके खत्म होती है. रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्या वो रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है और क्या वो रिलेशनशिप बिल्ड होके रह रही है. So like with my bank, 16 years I've been using their services and I'm very happy with their services. मेरे पास उनका डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है, सेविंग्स अकाउंट भी है. मैंने अपने बच्चों के भी अकाउंट्स वहाँ खुलवा लिए. लॉकर मैंने नहीं लिया क्योंकि उनके पास लॉकर रेट्स एक्सपेंसिव हैं. बट बाकी आई डोंट थिंक उस बैंक की कोई सर्विस है जो मैंने नहीं यूज़ की होगी. कोई भी नहीं है ऐसी. इवन ओवर द टाइम आई हैव यूज्ड एवरी सर्विस दैट दे हैव टू ऑफर बिकॉज आई हैव बीन हैप्पी विद देम. दे हैव बीन एबल टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप विद मी. दिस इज द प्रॉब्लम विद रिलेशनशिप बिल्डिंग. Customer आए, new customers, repeat customers, but you still keep losing. Think of it like a bucket with holes. Customer service के साथ ये बड़ा पंगा है. It's a bucket with holes. Dissatisfaction is the holes. A bad encounter creates a hole. So the point is that why do we want to focus on relationship building? क्या ज़रूरत है? और relationship management. Why? Because look at this part. याद है आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ा था, द कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग द ओल्ड कस्टमर. सेम लॉजिक अप्लाइज. क्योंकि कस्टमर को खुश करना सर्विस में ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर एक बार ही खुश हो गया ना, उस खुशी को यूटिलाइज करना आप पे है. नहीं तो यूजुअली क्या होता है, कंपनी से कहती है आप आए एज अ कस्टमर, यू आर सेटिस्फाइड एंड यू लीव. दे डोंट बिल्ड अ रिलेशनशिप विद यू. They don't call you for a repeat purchase. तो क्या होता है, हर बारी I am a new customer for them. Repeat purchases is the key word and the last word which I was saying, जो मैं अभी start से कह रहा हूँ class के, word of mouth. Word of mouth is very important in building a relationship. नहीं तो relationship building नहीं होगी. Then look at this. How our relationship with, so the customer and the company
we have a relationship, and that relationship evolves with time. So when we start a relationship, we are strangers. मैं किसी एक शॉप में मैं पहली बारी गया, वी आर अ स्ट्रेंजर, मुझे नहीं पता वो कैसी सर्विस देगा, बट मैं गया वहाँ पे ट्राई करने के लिए. देन आई लाइक दैट सर्विस, देन आई गो अगेन, आई हैव बिकम एन अक्वेंटेंस एंड आई हैव गॉन फॉर द ओनली वन प्रोडक्ट. सो लेट्स से मैं एक शॉप में गया और वहाँ पे मुझे टी शर्ट्स खरीदनी है. मैं पहली बारी गया, एक टी शर्ट ली, आ गया. दूसरी बारी गया, 2 ली, आ गया. थर्ड टाइम प्रॉब्ली व्हेन आई गो, मैं टी शर्ट के साथ एक ट्राउजर्स भी ले लूँगा, एक जीन्स भी ले लूँगा. आई एम बिकमिंग अ फ्रेंड. एंड उसके बाद मैं अपने बच्चों के कपड़े भी ले रहा हूँ, अपनी वाइफ के लिए भी ले रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए भी ले रहा हूँ. दिस इज वेयर आई बिकम अ relationship with that particular store. For example, Bindals in Kamla Nagar, for example. Right? Yeah. Sometimes product speaks larger than words. For example, हमदर्द फोटो बनाता है, like example forms that. Right. तो वो competitor ही नहीं है, उसी के बेस पे सारी सेल्स निकालते हैं. Right. So I am a friend and a partner for that brand. And they are able to survive because they haven't changed the recipe. So that quality is very important. I don't know, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अभी कोई 5-6 साल पहले कोविड के आसपास, around COVID, there was this case that Hamdard, there was a brand that was coming from Pakistan as well. So there was this whole intellectual property copyright issue which eventually was settled in favor of Hamdard India, and then they started selling. बीच में रूह अफ़ज़ा disappeared from shelves because they had a legal dispute. जो मैगी के साथ हुआ था, same thing happened with रूह अफ़ज़ा as well. And with रूह अफ़ज़ा, you were very right, उसको ना यूजुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो वर्ड ऑफ माउथ से ही चल रहा है. एज किड्स वी यूज्ड इट, माय सन वांट्स रूह अफ़ज़ा, आई एम गिविंग इट टू हिम. वी रनिंग फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ एंड वी आर नाउ नॉट जस्ट फ्रेंड्स, वी आर पार्टनर्स. मुझे पता है मेरे बेटे को अगर कोई अच्छी ड्रिंक देनी है, रूह अफ़ज़ा इज अ गुड ऑप्शन. सो दैट इज दैट ट्रस्ट एंड लॉयल्टी इन माई हेड. हाँ जी बेटा. A primarily is again you have to have your few satisfied customers जो आपके ना एजेंट बन जाते हैं एक किस्म से. यार ये नया लड़का है, ये काम अच्छा करता है, इसके पास दिखा लो अपनी गाड़ी. अगर पुराने वाले के पास भीड़ है तो ये नया है, इसको दिखा लो, अच्छा है. बिकॉज अगेन वर्ड ऑफ माउथ वर्क्स इन अ न्यू सर्विस इनकाउंटर, स्पेशली फॉर अ प्रोडक्ट विच इज एज एक्सपेंसिव एज अ कार. आप ऐसे रैंडमली नहीं जाओगे किसी के पास. हाँ जी. ऑनलाइन में द बेस्ट ऑप्शन इज डिस्काउंटिंग. सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज हाउ डू आई गेट अ स्ट्रेंजर इनटू माय शोरूम. ऑनलाइन डिजिटल शोरूम भी तो एक शोरूम ही है ना. थिंक ऑफ इट लाइक दैट. लॉयल्टी का पता है कंसेप्ट क्यों नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना, डिस्काउंट हर जगह मिलता है. अगर आप डिस्काउंट के पीछे भागते हो ना, देन यू आर डिसलॉयल. आई अग्री विद यू. एंड दैट हैपन्स बिकॉज आपका ना कोई कस्टमर रिटेंशन का पॉइंट नहीं है. अब एक शैम्पू का सैशे है, मुझे नहीं पसंद आया तो मेरा टोटल कॉस्ट कितनी है? 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये फेंक दूंगा मैं उठा के, फिर दूसरी कंपनी के पास चला जाऊंगा. स्विचिंग कॉस्ट बिकम्स द स्टिकिंग पॉइंट. अगर वो जैसे गाड़ी की सर्विस है, गाड़ी की सर्विस इज अ मच मोर वैल्यूएबल सर्विस फॉर मी देन अ शैम्पू का सैशे. सो शैम्पूज मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं टूथपेस्ट चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर ईजी टू चेंज. बट वेन इट कम्स टू माई डॉक्टर, नो. विल यू चेंज योर डॉक्टर जस्ट बिकॉज आज मन नहीं आपको उसके पास जाने का? वुड यू डू दैट? नो. बट वेन इट कम्स टू एन FMCG प्रोडक्ट, discounting is more important. But when it comes to a doctor, lawyer, teacher, tuition center, whatever word we want to use, उसमें quality and loyalty matters. So जो मेरे family doctor हैं, आप लोगों को experience करा होगा नहीं करा होगा, not every doctor makes a medical certificate. कोई नहीं बनाता, क्योंकि आजकल इतना उस मेडिकल सर्टिफिकेट में इतना हम लोगों ने वो देख लिया ना धांधलेबाजी, that even the doctors are hesitant to sign a medical certificate. So उसके लिए आपका फैमिली डॉक्टर काम आता है. वो क्यों करता है? क्योंकि वो आपको जानता है. जो मेरा फैमिली डॉक्टर है, he knows my grandmother,
he's treated my grandmother, he's treated my father, he's treated me, maybe he'll treat my children also. 4 generations, same family, same doctor. 92 से हम उस डॉक्टर को जानते हैं, आज उस बात को 31 years हो गए. We know his family, he knows our house, we know where he lives. We are not just doctor patient, we are friends and partners. अब उनको for example friend and partner, now my doctor is about 60 plus, ठीक है, and he needs to renew his driving license. So the first guy he called up was me. He could have asked anybody, but he called up me. उसको पता है कि मैं कर दूंगा उनका काम. That is, we are no longer doctor patient, we are partners, we are friends and partners. यहाँ पे चाहिए relationship. So मैं डॉक्टर चेंज नहीं करूंगा ऐसे. FMCG में मैं डिसलॉयल हूँ, ओला उबर में मैं कंप्लीटली डिसलॉयल हूँ, स्विगी जोमेटो में मैं डिसलॉयल हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ स्विगी पे मिल रही है वो चीज़ जोमेटो पे भी मिल रही है एंड सेम क्वालिटी में मिल रही है और सेम प्राइस पे मिल रही है. देन आई एम लुकिंग एट कंफर्ट, कौन ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, कौन ज़्यादा जल्दी डिलीवरी कर रहा है. ऐसे जोमेटो ने मेरे साथ किया. 2 weeks बिफोर आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम सबवे, उन्होंने मेरे को एक वो दे कन्विंस्ड मी एक गोल्ड मेंबरशिप ले लो 49 रुपीज़ की, जिसमें डिलीवरी फ्री हो जाती है. उसी दिन उन्होंने मेरी 46 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज से मेरे को 3 रुपीज़ पे करने पड़े 49 की मेंबरशिप लेके, वो वहीं फ्री हो गए. अब वो 3 महीने चलेगा. मैं 3 महीने जोमेटो का कस्टमर हूँ, क्योंकि मैंने पैसे दे दिया, मुझे उसको वसूलना है. खत्म हो जाएगी, मैं फिर स्विगी पे चला, फिर मैं डिस्काउंट ढूंढने शुरू कर दूंगा. कौन डिस्काउंट देगा, मैं भाग जाऊंगा. क्यों? क्योंकि देयर इज नो नीड फॉर लॉयल्टी. वो स्विगी से आए चाहे जोमेटो से आए, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. आ रहा तो उस रेस्टोरेंट से ही है ना, आ तो बर्गर किंग से ही रहा है ना. वो बर्गर किंग वाला डिलीवरी करे, चाहे जोमेटो वाला करे, चाहे स्विगी वाला करे, चाहे ओला वाला करे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. डिलीवरी इज जस्ट अ सर्विस, इट इज जस्ट अ सर्विस. बट व्हेन इट कम्स टू फूड, आई हैव अ प्रेफरेंस, मुझे बर्गर किंग से ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए ले ली. So you have to be creative on how do you get the customer into your store. Discounting is the best option. Then you figure out ways on how to get the customer to stick. Customer stickiness is very important. Abhi we'll discuss a couple of points. Abhi hai na hamare paas time, I think. So we'll discuss a couple of points on how to retain the customer. Okay? Then evolving of a relationship is acquiring. इसी का ही वो है. Acquiring, satisfying, रिटेनिंग एंड एनहांसिंग. ठीक है, लाइक आई सेड, जो मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल जो मेरा इंश्योरेंस वाले भैया हैं सो कॉल्ड, ही स्टार्टेड लाइफ एज अ रिलेशनशिप विद मी बाय फिलिंग माई टैक्स रिटर्न्स. वो मेरी टैक्स रिटर्न्स भरते थे भैया, ही वॉज माई टैक्स प्रिपेयरर. ठीक है, वी स्टार्टेड आउट लाइफ देयर. मेरे भरे, फिर मेरे पेरेंट्स के भरे, मेरी वाइफ आई उनके भरे. So we went from strangers to acquaintances. फिर मुझे अपने, जब मेरा बेटा हुआ बड़े वाला, तो मेरा मन किया उसके लिए एक LIC पॉलिसी लेने को. I called him. He gave me the policy and I bought it from him. He became friends. और आज जब मुझे मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, मुझे कोई भी टैक्स रिलेटेड क्वेरी होती है, I call him up. He is now my partner. He has enhanced our relationship. Acquire किया, satisfy किया, retain करा और enhance करा by cross selling products. म्यूचुअल फंड्स बेचे उन्होंने, मुझे एक SIP बेच दी, एक मेडिकल इंश्योरेंस बेच दी, एक मेरे बच्चे के लिए 2 इंश्योरेंस, मैंने अपनी वाइफ के लिए भी ले ली, अपने बेटे के लिए भी ले ली, अब मैं छोटे वाले के लिए भी लूँगा. तो मैं इन्हीं को सबसे पहले पूछूंगा, अगर ये मुझे अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा कोट देंगे, तो आई बाय फ्रॉम हिम. मैं क्यों जाऊँ छोड़ के इनको. आई एम हैप्पी विद हिम. जो मेरे गाड़ी के इंश्योरेंस वाले हैं, आई एम हैप्पी विद हिम. आई नो हिम सिंस 91. आई एम हैप्पी विद हिम. नो 2000 आई नो 22 years. आई एम हैप्पी विद हिम. मेरे को जब चाहिए होता है उनसे लेता हूँ. उनका लड़का मुझे कॉल कर देता है, भैया आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है, ये आपको डिस्काउंट है. आई एम हैप्पी. द रिलेशनशिप हैज बीन रिटेन्ड एंड एनहांस्ड. जब भी मुझे गाड़ी का कॉल आता है, गाड़ी वाले जैसे क्या होता है ना, मारुति एंड ऑल दीज गाइस सेल दैट डेटाबेस. सो कभी बजाज वाला फोन करेगा, कभी कोई करेगा, कभी कोई करेगा, और इनके फोन से मुझे याद आता है, अच्छा मेरी पॉलिसी भी ड्यू है. ऑब्वियसली दे आर मोर इनटू इट. मैं भूल जाता हूँ. So when they call me, I have only one standard answer. मेरे पास अपना इंश्योरेंस एजेंट है, मैं उनसे करवाऊंगा, थैंक यू, कीप द फोन डाउन. बिकॉज देयर इज दैट रिटेनिंग एंड एनहांसिंग पार्टनर फ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो चुका है. एंड फन फैक्ट, मेरे को पहली बारी मैंने गाड़ी बेची, मैंने उनके नेफ्यू को बेची. आई कुड हैव गॉन टू मारुति, ट्रू वैल्यू, कंट्री वाइड, जो भी ये हुंडई टाटा वाले, जो इनके ये स्टैंडर्ड वाले सेकंड हैंड वाले कार्स 24 पे तो मैं जाने से रहा.
क्योंकि उनके मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीडबैक सुन चुका हूँ उनके बारे में, तो वहाँ तो जाने से रहा. एंड वॉट आई डिड विद दिस गाय, आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली, मेरे को पेपर वर्क में चिक चिक नहीं चाहिए. सो ही गेव मी. आपने कभी सुना है कि कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेता है आपसे और गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेता है विद इन 2 days? ही डिड दैट फॉर मी. उसको पता है कि ये मेरे उसके चाचा हैं जो मेरे इंश्योरेंस एजेंट हैं. सो उनसे ही मैंने पूछा, अंकल किसको बेचूं, मेरा नेफ्यू है, मैं उसको बोलूँगा आपको कॉल करते हैं. ही कॉल्ड अप, आई सोल्ड माई कार टू हिम. फर्स्ट रिलेशन acquiring, I sold my car to him. He transferred the car in his name within 3 days. और वो इतना अच्छा लड़का था, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए जिस दिन उसने आरटीओ में एप्लीकेशन जमा की, और वो गाड़ी लेने हफ्ते बाद आया था. मैंने हफ्ता भर गाड़ी उसके नाम पे चलाई थी अपनी. इट वॉज इन हिज नेम बट आई ड्रोव द कार. ही लाइक, भैया आपसे तो मेरे घर वाली बात है, आपसे कुछ नहीं होगा मुझे. बट ही पेड मी 10,000 लेस. वाई डिड आई टेक द 10,000 लेस देन से मारुति या कार्स 24 या स्पिनी या जो भी ये वाली एप्स हैं? बिकॉज वॉट ही वॉज गिविंग मी वॉज पीस ऑफ माइंड. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई विल कॉम्प्रोमाइज 5,000 रुपीज, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. वो मुझे पीछे भागना मेरे लिए वर्थ इट है वो. सो उसके बाद क्या हुआ? दिस इज हाउ वर्ड ऑफ माउथ वर्क्स. वी डिड दैट, मी, माई फैमिली, माई वाइफ, एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन. ऑब्वियसली घर पे कोई आता है तो एवरीबडी नोज. सो माई वाइफ्स कलीग वॉन्टेड टू बाय अ सेकेंड हैंड कार. वो ऐसी इधर उधर देख रही थी. वन डे शी आस्क्ड माई वाइफ, यार तुम्हें कोई पता है? आई सेड हाँ रुको मैं अपने हस्बैंड से आपको भैया का नंबर लेके देती हूँ. I gave that number to my wife's colleague. She called him up. She told him our reference, and what he said was, "आप रुक जाओ, मैं आपके लिए एक अच्छी गाड़ी ढूंढ के लाता हूँ." 1 week later, he got them a Swift, and they're very happy with it because relationship building. So what is happening? Word of mouth भी हो गया, acquiring भी हो गई, सब हो गया. और enhancement में मुझे second car जब ये डीजल वाली NGT में जो डीजल गाड़ियों को इन्होंने मेरा हाल करा ना, so I had to sell it off again. Like, भाई ले जा. और वो तो कार मैंने 2 weeks चलाई थी, क्योंकि जो मैंने कार बुक करी हुई थी वो हफ्ता भर डिले हो गई. तो मैं लिटरली मैंने 2 हफ्ते उसके नाम पे पैसे लेके अपने अकाउंट में उसके नाम पे मैंने गाड़ी चलाई है 2 हफ्ते. दैट इज ट्रस्ट. सो वेन एवर आई नीड टू सेल अ कार, भैया आजा. कोई मेरे से पूछता है यार इससे करा लो, ये अच्छा लड़का है, आगे आपकी बैठते हैं उससे रिलेशनशिप की नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है. मेरी रिलेशनशिप तो अच्छी है ना उसके साथ, मेरा वर्ड ऑफ माउथ तो पॉजिटिव है ना उसके लिए. That's how service built. So this ladder actually makes sense. So just keep this in mind. ये उसी का ही reading part है, little bit more detailed. You guys can read it at your own convenience. यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है, आप अपने लैपटॉप पे आप लोग शांति से देख लीजिएगा. Then let's end with this part. Okay? Benefit of relationship marketing for customers. मेरे को क्या benefit है एक relationship में रहने का with one particular service provider? I get confidence, I get special treatment. That's most important. Additional treatment, special treatment, line jump करके, हाँ भैया आ जाओ, क्या हुआ बताओ मुझे. It happens. Line jump करना, I would want that. I'll be happy with that if I'm getting that service. So special treatments are very important, but please read this red part. This is very important. It will be industry specific. So what applies for the tuition industry will not apply for the FMCG industry. Though the customer might remain the same, the encounter might remain the same, but it will depend on the service encounter and its repeatability. These are very important things. So for example, if I say I have a doctor who is a gynecologist, मेरा उनके साथ repeatability नहीं होगी. एक ही बारी डिलीवरी होगी ना, बार बार तो नहीं डिलीवरी होगी ना, सेम पर्सन. सो द पॉइंट इज विद दैट डॉक्टर माई इंटरेक्शन विल बी स्पेसिफिक, बट विद माई पीडियाट्रिशियन माई इंटरेक्शन विल बी फॉर एटलीस्ट 12-13 years. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डॉक्टर सेम है, डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन सेम है, बट डॉक्टर की कैटेगरी डिफरेंट है. सो गायनेकोलॉजिस्ट मेरी पहले जो बेटे की थी, आई वॉज नॉट हैप्पी विद हर. सो व्हेन द सेकेंड टाइम वी वर लुकिंग, I found somebody else. अब मैं उनसे हैप्पी हूँ, but there's no third treatment that I'll go to her for, ना? Obviously not. Right? So उनके साथ मेरा रिलेशनशिप वन टाइम ही था, but जो मेरे पीडियाट्रिशियन है, he is my elder son's pediatrician, junior one's pediatrician, और कोई भी मुझसे मेरी कलीग का भी बच्चा हुआ था साथ में, so she asked me for a good pediatrician, I referred her to him. मेरे वाले के पास चले जाओ, वो अच्छा डॉक्टर है, because word of mouth again.
बट आई एम नॉट रेफरिंग माई गायनेकोलॉजिस्ट टू हर, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो रिलेशन ना उनको चाहिए ना मुझे चाहिए. Our transaction has ended. So there is no repeatability in this case. But we had a good positive service encounter. Nothing wrong in it. ठीक है? Then the second dimension, बस ये last वाला है, then we'll stop for the day. Yes. Relationship value of a customer. मुझे as a company, why do I need to bother with relationship building? Because I have economic benefits. Like I said, cost of retaining a customer and getting them to buy more products from you is easier than acquiring a brand new customer. So there is monetary benefit. Second is customer behavior. If we are friends, मैं अगर आपको बोलूँगा ना भैया आज मत आना, आप गाड़ी लेके कल ले आना, मैं कल ठीक कर दूंगा, मैं वेट कर लूँगा एक दिन, मैं एक दिन वेट कर लूँगा, क्योंकि मुझे वो रिलेशनशिप है उनके साथ, मुझे एक वो ट्रस्ट है उनके साथ, एक वो रिलायबिलिटी है उनके साथ, राइट? एंड a good customer will lead to good employee retention, right? And ease of operation. Everything gets sorted out. We are happy, we are neat, we are clean, we are happy with each other. Everything goes off smoothly. Again, the same problem. It is industry specific, it is encounter specific, it is repeatability specific. ठीक है? So I'll just leave you with one slide. मैं जरा attendance sheet आपको जुगाड़ करके लाता हूँ. है नहीं ना क्लास में भी. I'll just figure out. You just read this. I'll just come in a minute. Okay? Leave this here. I'll just come in 1 minute. You guys just read this. Huh? Okay, so this is relationship marketing in action. We are getting the customers to stay in a relationship when we are able to consistently deliver what the customer wants. So this is where we'll end for today's class. And we'll now, next topic we'll pick up is customer profitability and service recovery in more detail with more examples. Okay? So that's for the next class. So we'll stop here. Thank you, and just wait for the attendance sheet to come. Just stay in the class so you can fill the sheet and go. Okay? Thank you.